Dear students, now we have to solve our exercise number 2.1. Our first question is apply the given elementary transformations on each of the following matrices. Number 1, A is a matrix having elements 5, 4, 1, 3, and we have to apply the elementary transformation C1 and C2 are interchanged with each other, and second given matrix is B of elements 3, 1, 4, 5, and we have to apply the transformation R1 is interchanged with R2 on B. Again, question is, what do you observe after applying the given elementary transformation? Solution. Our given matrix A is matrix square matrix of order 2 having elements of 4, 5, 4, 1, 3. Applying the given elementary transformation on matrix A, that means by C1 is interchanged with C2, it gives, or we get new matrix which is equivalent to matrix A, interchanging column number 1 and 2. That means column number 1 is changed with column number 2 and column number 2 is changed with column number 1. That means we replace the elements 5, 1 with second column, and we replace the elements of second column 4, 3 by first column. Also, given matrix B is having elements 3, 1, 4, 5, and we have to apply the elementary transformation R1 is interchanged with R2. That means we obtain a matrix equivalent to B after applying the elementary transformation. R1 is interchanged with R2. That means the first row is interchanged with second row and second row is interchanged with first row. That means replacing the elements of first row with elements of second row. That means 3, 1 is replaced by 4, 5, and 4, 5 is replaced by 3, 1. फर्स्ट रो के एलिमेंट्स सेकंड रो से और सेकंड रो के एलिमेंट फर्स्ट रो से इंटरचेंज करने पे हमको ये मैट्रिक्स मिला है, ऑब्टेन हुआ है, और ये बी के क्या रहेगा, इक्विवेलेंट होगा. तो जो गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन थे हमने उनको रेस्पेक्टिव मैट्रिसेस पे अप्लाई किया, तो हमको फर्स्ट ऑपरेशन ए पे अप्लाई करने पे ये मिला, और सेकंड ऑपरेशन जो है वो बी पे अप्लाई करना था, वो अप्लाई करके हमको ये मिला. दोनों मैट्रिसेस पे हमको ऑब्जर्व करना है
कि दोनों मैट्रिसेस जो हमको ऑब्टेन हुआ है वो मैट्रिसेस कैसे हैं. देखिए दोनों ऑब्टेन मैट्रिसेस के एलिमेंट्स 4, 5, 3, 1. दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट एकदम सेम है. दैट मीन्स दोनों मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम है और उनके ऑर्डर्स भी सेम है. दैट मीन्स वो दोनों मैट्रिसेस कहते हैं सेम मैट्रिसेस है. सेम मैट्रिसेस मीन्स इक्वल मैट्रिसेस. तो हमने ऑब्जर्व किया, वी ऑब्जर्व दैट both the matrices are same or equal. दोनों मैट्रिसेस सेम है, इक्वल है. सेकंड क्वेश्चन हमारा A is a matrix having element 1, 2, minus 1, 0, 1, 3, and we have to apply transformation 2 into C2, and the second matrix is B 1, 0, 2, 2, 4, 5, and we have to apply the operation minus 3 is multiplied by row 1. Our question is find the addition of the two new matrices. हमको मैट्रिसेस पे जो गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है वो अप्लाई करना है. हियर मैट्रिक्स ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 3. 2 रोज और 3 कॉलम्स है इसमें. 2 by 3 का ये मैट्रिक्स है. उसके एलिमेंट है 1, 2, minus 1. सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं 0, 1, 3. We have to apply the elementary transformation 2 into C2. Therefore, 2 into C2 gives a matrix which is equivalent to A. 2C2 यानी कॉलम नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है. दैट मीन्स कॉलम नंबर 1 एज इट इज रखना है, कॉलम नंबर 3 एज इट इज रखना है. कॉलम नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई करना है. 2 into 2 4, 2 into 1 2. कॉलम नंबर 2 के एलिमेंट्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई किए. ये ऑब्टेन मैट्रिक्स. आल्सो सेकंड मैट्रिक्स जो है आपका बी, मैट्रिक्स बी इज आल्सो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 3 यानी 2 रोज और 3 कॉलम्स का ये भी मैट्रिक्स है. फर्स्ट रो है 1, 0, 2. सेकंड रो के एलिमेंट्स है 2, 4, 5. Therefore, applying the given elementary transformation minus 3R1 which gives a matrix equivalent to B. R1 को -3 से मल्टीप्लाई करना है. दैट मीन्स R1 के ईच एंड एवरी एलिमेंट को -3 से मल्टीप्लाई करना है. R1 रो नंबर 1 के एलिमेंट्स को
-3 से मल्टीप्लाई करना है, -3 इंटू 1 -3 इंटू 0 0 -3 इंटू 2 -6। R2 के एलिमेंट्स एज इट इज होंगे। ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स आया, हम उसे जो बी का इक्विवेलेंट है हम उसे सेकंड स्टार देते हैं। क्या करना है हमें? फाइंड द एडिशन ऑफ द टू न्यू मैट्रिसेस। दोनों ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो न्यू मैट्रिसेस आए उनका क्या करना है? एडिशन करना है। नाउ एडिंग द टू न्यू मैट्रिसेस of star and double star, we get हमारा पहला न्यू मैट्रिक्स है हैविंग एलिमेंट 1 4 -1। उसके सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं 0 2 3। उसमें ऐड करना है सेकंड न्यू मैट्रिक्स जो आया है बी में ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद वो भी 2/3 का मैट्रिक्स है और उसके फर्स्ट रो के एलिमेंट है -3 0 -6। सेकंड रो के एलिमेंट्स है 2 4 5। हमको इन दोनों का एडिशन निकालने। दोनों का ऑर्डर एकदम सेम है, 2/3 का ये भी है, 2/3 का ये भी है, 2 रोज 3 कॉलम्स का ये भी मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में भी 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, देयरफॉर दोनों का एडिशन पॉसिबल है। और कैसे एडिशन होता है हमने 11th में देखा है, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन होता है। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से एडिशन होगा। 1 और -3 का एडिशन होगा, कितना रहेगा? -2। 4 का एडिशन 0 के साथ होगा, 4 + 0 कितना रहेगा? 4। -1 का एडिशन -6 में होगा, कितना हो जाएगा? -1 में -6 का एडिशन -7। 0 में 2 का एडिशन होगा 2, 2 में 4 का एडिशन होगा 6, 3 में 5 का एडिशन होगा 8। तो हमको दोनों न्यू मैट्रिसेस का एडिशन मालूम करने का, तो हमने मालूम किया। तो एडिशन के लिए दोनों का ऑर्डर एकदम सेम होना चाहिए। दोनों का ऑर्डर सेम है तभी एडिशन होगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में एडिशन होगा। और जो ऑब्टेन मैट्रिक्स होगा उसका भी ऑर्डर वही रहेगा जो इन दोनों का ऑर्डर है। यानी ऑब्टेन मैट्रिक्स भी 2/3 का है, 2 रोज और 3 कॉलम्स का मैट्रिक्स है। उसके बाद थर्ड एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। A is a square matrix of elements 1 -1 3 2 1 0 3 3 1, and we have to apply the transformation 3R3 and then C3 plus 2C2. Solution. Our given matrix is a square matrix of order 3, 3 rows and 3 columns. 3 rows और 3 columns का ये मैट्रिक्स है। दैट मीन्स 3/3 का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है 1 -1 3, सेकंड रो के एलिमेंट्स है 2 1 0, थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं 3 3 1। We have to apply the elementary transformation 3R3. Therefore, by 3R3 we get the new matrix which is equivalent to A. That means 3R3 gives a matrix equivalent to A.
R3 के ईच एंड एवरी एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स रो 3 के तमाम एलिमेंट को 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी रो 1 के एलिमेंट्स एज इट इज, उसको कुछ नहीं करना है। रो 2 में कोई चेंज नहीं करना, उसके एलिमेंट्स एज इट इज। रो नंबर 3 के एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 1 3, and then we have to apply the elementary transformation C3 plus 2C2. Now C3 plus 2C2 gives a matrix which is equivalent to matrix A. हमको C2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, कॉलम नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, एंड देन उसके एलिमेंट्स को C3 के कॉलम नंबर 3 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड करना है। दैट मीन्स फाइनल ऑपरेशन कॉलम नंबर 3 में जा रहा है, यानी कॉलम नंबर 3 के एलिमेंट्स चेंज होंगे, यानी कॉलम नंबर 3 में चेंज दिखाई देगा। कॉलम नंबर 1 एज इट इज रहेगा, कॉलम नंबर 2 भी एज इट इज रहेगा, उसके एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे। कॉलम नंबर 2 के एलिमेंट्स को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना और 3 में ऐड करना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, -1 इंटू 2 कितना रहेगा 2, -2 3 में ऐड होगा, 3 - 2 कितना रहेगा 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 2 को इसमें ऐड करेंगे, 0 + 2 बोले तो 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 9 18 इसमें ऐड होगा, 18 + 3 21। तो हमें ये दोनों ऑपरेशन तरतीबवार अप्लाई करना थे, हमने तरतीबवार उसको अप्लाई किया। ऑर्डर के मुताबिक पहले R3 को 3 से मल्टीप्लाई करना था, हमने किया। फिर उसके बाद हमको कॉलम नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 3 में ऐड करना था, हमने किया। उसके बाद हमारा अगली एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4। A 1 -1 3 2 1 0 3 3 1। We have to apply elementary transformation C3 plus 2C2 and then 3R3. What do you conclude? आगे क्वेश्चन है, what do you conclude from example number 5 and example number 6? एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6, हमारे यहाँ एग्जाम्पल नंबर ये 3 है और एग्जाम्पल नंबर ये 4 है। इन दोनों एग्जाम्पल से हमको क्या कंक्लूजन मिलता है, वो कंक्लूजन भी लिखने में। हम देख रहे हैं दोनों मैट्रिसेस 3x3 के सेम मैट्रिसेस हैं, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, 1 -1 3, सेकंड रो के एलिमेंट्स है 2 1 0, थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं 3 3 1, और जो ऑपरेशंस हैं 3R3 यहां भी हमको अप्लाई करना है 3R3, और सेकंड ऑपरेशन यहां था C3 plus 2C2, C3 plus 2C2, यानी ऑपरेशन वही है, बस तरतीब बदल दी गई है। यहां पहले ये रो ऑपरेशन करना था, बाद में ये कॉलम ऑपरेशन करना है, बाद में रो ऑपरेशन करना है, यानी गिवन मैट्रिसेस भी सेम है और उन जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशंस करना है वो भी सेम है, बस वो ऑपरेशंस का ऑर्डर बदल दिया गया। तो चलो इस तरतीब में ऑपरेशन को अप्लाई करके देखते हैं यहां क्या नतीजे निकलते हैं। सॉल्यूशन, our given square matrix of order 3 is 1 -1 3 2 1 0 3 3 1. Therefore C3 plus 2C2
दिस एलिमेंट्री ऑपरेशन गिव्स, क्या मिलता है हमें, ए का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स रहेगा। कॉलम नंबर 2 के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करने और उसको C3 कॉलम नंबर 3 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड करने, यानी फाइनल ऑपरेशन हमारा कॉलम नंबर 3 में जा रहा है। देयरफॉर चेंजिंग जो दिखाई देगी कॉलम नंबर 3 में दिखाई देगी। दैट मीन्स कॉलम नंबर 1 के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे, कॉलम नंबर 2 के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे। कॉलम नंबर 3 के एलिमेंट्स चेंज होंगे, कैसे चेंज होंगे, कॉलम नंबर 2 के एलिमेंट्स 2 से मल्टीप्लाई होंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ कॉलम नंबर 3 में उनका एडिशन होगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 2 -2 इसमें ऐड होगा, 3 - 2 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 का एडिशन इसमें होगा, 2 + 0 बोले तो 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इसमें ऐड होगा, 6 + 1 7। आफ्टर दैट वी हैव टू अप्लाई द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन 3R3। दैट मीन्स 3R3 gives the matrix which is equivalent to matrix A। 3R3 है, यानी रो नंबर 3 के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स रो नंबर 1 में कोई चेंज नहीं, रो नंबर 1 एज इट इज, रो नंबर 2 के एलिमेंट्स एज इट इज। रो नंबर 3 के एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3 9, 3 × 3 9, 3 × 7 21। What do you conclude from example number 3 and example number 4? एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, चलो देखें। दोनों के गिवन मैट्रिसेस सेम मैट्रिसेस थे और ऑपरेशन जो अप्लाई करना थे वो ऑपरेशन से भी सेम थे, बस ऑपरेशन का ऑर्डर बदल दिया गया था। तो दोनों का जो रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट हम देखें, वो फाइनल रिजल्ट क्या क्या है। दोनों फाइनल रिजल्ट हमारे सामने, देखें। इसके वो भी 3/3 का है, ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है और फर्स्ट रो के एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखें 1 1 -1 1, सेकंड रो के एलिमेंट्स 2 1 2, थर्ड रो के एलिमेंट्स 9 9 21। दैट मीन्स दोनों मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बिल्कुल सेम है और उनके ऑर्डर भी बिल्कुल सेम है। दैट मीन्स दोनों मैट्रिसेस सेम मैट्रिसेस है, यानी हमने जो ऑपरेशन का ऑर्डर बदला था उससे आने वाले रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आया। जब मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स वही था और अप्लाई किए गए ऑपरेशन भी वही थे, बस उनका ऑर्डर हमने चेंज किया था, तो हमको ऑप्टेन जो फाइनल मैट्रिक्स आया दोनों एग्जांपल में वो एकदम सेम मैट्रिसेस आए। दैट मीन्स यहां हम कह सकते हैं कि ऑर्डर को अदली बदली किया जा सकता है, ऑर्डर को बदला जा सकता है। ऑर्डर बदलने पे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स ऑर्डर को बदला जा सकता है। ऑर्डर्स आर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस आर कम्यूटेटिव विथ ईच अदर, यानी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस कम्यूटेटिव होते हैं, बदले जा सकते हैं एक दूसरे से, यानी ऑपरेशंस को एक दूसरे से बदला जा सकता है, यानी उनके ऑर्डर को एक दूसरे से चेंज किया जा सकता है। इस ऑपरेशन की वजह, आप पहले ये ऑपरेशन किए बाद में ये किए या पहले वो वाला ऑपरेशन किए बाद में वाला ऑपरेशन किए, तो ये जो रिजल्ट आता है उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो हमने यही कंक्लूजन निकाला कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस कम्यूटेटिव होते हैं, उनको बदला जा सकता है। Therefore, by example number 3 and example number 4, we conclude that elementary
transformations are commutative of each other. Now, our last question is question number 5. Use suitable transformation on matrix 1 2 3 4 to convert it into an upper triangular matrix. यूज सुइटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, हमको सुइटेबल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है. अब ट्रांसफॉर्मेशन दिया नहीं है हमको, खुद से जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकेगा वो ट्रांसफॉर्मेशन करना है. क्या एम लेके टू कन्वर्ट इट इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. इसको हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने, इसके लिए कौन सा सुइटेबल ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन इस पे अप्लाई करके इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने 11th में टाइप ऑफ मैट्रिसेस में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखा है. A matrix in which the elements below the diagonal is 0, then that matrix is called upper triangular matrix. ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के बिलो एलिमेंट्स 0 रहे, उसे क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. डायगोनल के नीचे हम देख रहे हैं यहां सिर्फ 3 है. इस 3 को अगर हम 0 कर दें तो बिलो द डायगोनल एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है 3, अगर उसको हम 0 बना दें तो ये क्या हो जाएगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा. और हमको इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. दैट मींस इस 3 को हमको क्या कर देना है? 0 कर देना है. अब इस 3 को 0 करने के लिए हमको 3 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस में से कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है और इसको 3 को 0 करना है. अगर हम रो नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 हो जाएगा, और फिर इसको इसमें से माइनस कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 3 0 हो जाएगा. ये ऑपरेशन करके हम आसानी से इस 3 को क्या कर सकते हैं? इस 1 का यूज करके 0 कर सकते हैं. और ये 1 जो है रो नंबर 1 में, इसलिए रो नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके रो नंबर 2 में से माइनस कर दें. तो चलो ये गिवन मैट्रिक्स को मैं लेट कर लेता हूं. लेट गिवन मैट्रिक्स इज ए 1 2 3 4. नाउ ऑपरेशन रो नंबर 2 में चेंज करना है. मैं रो नंबर 2 में इस पोजीशन पे 0 करना है. रो नंबर 2 में चेंज चाहता हूं मैं. क्या चेंज करना है? रो नंबर 2 में से माइनस करना है. किसको माइनस करना है? रो नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद रो नंबर 2 में से माइनस करना है. तो रो नंबर 1 को पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहां 3 बन जाए. फिर रो नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद रो नंबर 2 में से माइनस करना है. ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा हमें? दिस ऑपरेशन गिव्स a new matrix which is equivalent to the given matrix A. रो नंबर 2 में हमें चेंजिंग करना है. दैट मीन्स रो नंबर 1 के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे.
रो नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके रो नंबर 2 में से माइनस करना है। रो नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से इस 1 को मल्टीप्लाई किया 3, इसमें से माइनस हुआ 3 माइनस 3 0। ये भी रो नंबर 1 में है, उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6, इसमें से माइनस करना है 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 कितना रहेगा -2। हम देख रहे हैं इस 2/2 के स्क्वायर मैट्रिक्स में बिलो द डायगोनल के नीचे का एलिमेंट 0 है। दैट मीन्स ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। और हमको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इस गिवन मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना था, हमने ये ऑपरेशन अप्लाई किया, इस ऑपरेशन से वो अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो गया, उसके बिलो द डायगोनल एलिमेंट 0 गए। तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन बड़े आसान थे। बाकी के क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़े वो आपके लिए होमवर्क हैं।